હેલો એવરીવન, આપણે જોઈ રહ્યા છે સબ્જેક્ટ બેઝિક મેથેમેટિક્સ અને એની અંદર આપણે સ્ટાર્ટ કર્યું હતું યુનિટ નંબર 1. એનું નામ છે लॉगरिथम मीन्स लघुगणक. ओके, और उसमें हमने प्रीवियस 2 वीडियो से स्टार्ट किया था जो जीटीयू के एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए थे एमसीक्यू, वो सॉल्व करना. ओके, तो आज इस वीडियो में भी हम क्या करेंगे, विंटर 2018 एंड समर 2018 दो जीटीयू के क्वेश्चन पेपर लेंगे और ये यूनिट नंबर 1 में से जो एमसीक्यू आए हैं वो हम सॉल्व करने की ट्राई करेंगे. राइट, उससे पहले हमने 2020 एंड 2019 के दो पेपर सॉल्व किए थे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इजी पूछा गया है. देखो है क्या, लॉग ऑफ एक्स रेज टू 4 मतलब लॉग કોનો છે એક્સની 4 ઘાત. હવે જોજો સવાલ શું છે કે આ આપણને ફક્ત આપ્યું છે. હવે આને આપણે કઈ રીતે લખી શકીએ, કયો લો અથવા તો પ્રોપર્ટી આપણે યુઝ કરીને શું લખી શકાય. બરાબર છે, જો આપણા પર 4 ઓપ્શન છે. तो सी यहाँ पे है क्या, यहाँ पे कुछ आधार जो है बेस है वो दिया है, नहीं दिया है. ओके, तो यहाँ पे कोई ना कोई बेस होगा, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, कोई ना कोई होगा. सो लॉग किसका कर रहे हैं हम, एक्स का, और उसका जो घात है यानी कि पावर है वो क्या है, 4 है. सो हमें पता है ना, લઘુગણકમાં આપણે જોઈ ગયા હતા લો, તેમાં હતો ને ઘાતનો નિયમ, મીન્સ લોગેરિધમ ઓફ પાવર. તો કોઈ પણ ઘાત હોય અથવા તો પાવર હોય તો એને આપણે શું કરીએ, લોગની આગળ લખાય. સમજ પડી? આ ઘાતને અહીંથી દૂર કરી નાખવાની અને એને ક્યાં લખી દેવાની, આપણે લોગની આગળ. તો આને મેં કેવી રીતે લખી શકું છું, આ ટર્મને જુઓ, આ 4 જે છે એ આપણે લોગની આગળ લખી દઈએ, 4 log एक्स. बराबर है, अँ 4 था ये तो अँ लखाई गया, એટલે હવે પાછા લખવાની જરૂર નથી. અહીં આપણને આધાર નથી આપ્યો તો એ કોઈ પણ હશે. બરાબર છે, આપણે એને કન્સિડર કરવાનું નથી. તો જુઓ આ ઓપ્શન છે આપણી ઉપર છે ને, લાસ્ટ ઓપ્શન નંબર ડી. તો અહીં ઓપ્શન કયું આવશે આપણું, ડી મીન્સ ડ. ઓકે, ખૂબ જ ઇઝી છે, બધા જ ઓપ્શન છે ને આપણને એવા લાગતા હોય કે સાચા જ છે. તો આપણે ઓપ્શન જોવાના ના હોય, આપણે જે બેઝિક શીખી ગયા છે એ લોઝ પ્રોપર્ટી યુઝ કરીને આપણે સોલ્યુશન લાવવાનું, પછી આપણે ઓપ્શન જોવાનું કે આ છે આપણા ઓપ્શનમાં અવેલેબલ. ओके, तो चलो आ तो खूब જ इजी હતો. चलो अब देखते हैं नंबर 2. अब नंबर 2 में क्या दिया है, सी ये टर्म दी हुई है हमें, क्या, लॉग ऑफ एक्स बाय वाय, एक्स भाग्या वाय વચ્ચે શું છે પ્લસ, પછી શું આપ્યું છે, log y ડિવાઇડ બાય x ઇક્વલ ટુ બરાબર log ઓફ x પ્લસ વાય. જો અહીં પણ કશે આપણને આધાર આપ્યો છે, અહીંયા નથી, મતલબ જે પણ હશે તે આધાર કેવો હશે, સરખો હશે. બરાબર, ચાલો તો હવે આને આપણે કેવી રીતના સોલ્વ કરીશું. જો આ ટર્મ આપી હોય તો આ ઓપ્શન જે છે આપણે 4 આપણને આપ્યા છે એમાંથી કયો ઓપ્શન આવી શકે સાચો. તો આની અંદર ખૂબ જ ઇઝી છે. સૌ પ્રથમ આપણે શું કરશું, આપણે લોગरिथम सरवाળાનો નિયમ જોયો હતો, है ना. एडिशन जब होता है दो टर्म के बीच में, लाइक ये 2 लॉग वाली टर्म है, मतलब 2 लघुगणक वाला पदों है, बेनी वच्चे शू है, सरवाड़ो है प्लस एडिशन है. राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, ये 2 लॉग की जगह पे हम 1 लॉग लिखेंगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये 2 जो है उनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन. तो देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे x बाई वाई इंटू ये क्या है, y बाई एक्स. गेटिंग, तो ये लिख सकते हैं. और ये राइट साइड जो है वो दोनों यहाँ पे सेम ही लिखना है, उसमें कुछ नहीं करना है. ओके, तो देखो ये टर्म पे से हमने कौन सी लिखी, ये लिखी,
कोई बात ज़रूरत हो तो हम ये टर्म पे से हम ये भी लिख सकते हैं, राइट। सो जब मल्टीप्लिकेशन आता है तो एडिशन होगा और एडिशन आता है तो मल्टीप्लिकेशन, ऐसे याद रखना है। सो ये दो लॉग वाली टर्म थी, दोनों के बीच में प्लस है तो हम एक ही लॉग लिखेंगे, और ये दो टर्म है जिसका लॉग ले रहे हैं ना उसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। मतलब જેનો આપણે લઘુગણક કરીએ છીએ એનો શું થશે, ગુણાકાર થશે, બરાબર છે। તો આટલું લખાયું આપણાથી। તો અહીં આપણે સરવાળાનો નિયમ જે છે એ આપણે યુઝ કર્યો છે। હવે સરવાળાનો એટલે આપણે લખ્યો હતો ને ગુણાકારનો નિયમ, ઓકે, લો ઓફ મલ્ટીપ્લિકેશન। પણ જ્યારે સરવાળો હોય ત્યારે આપણે કરીએ એટલે આપણે એ રીતના પણ યાદ રાખી શકીએ। ચાલો હવે જો બંને બાજુથી લોગ જે છે ને, જો લોગની આગળ કશું છે નથી, લોગ એકલા જ છે, તો બંને બાજુથી આપણે લોગ હટાવી શકીએ છીએ, બરાબર, કેન્સલ થઈ જશે। તો રહેશે શું, ફક્ત આટલું રહેશે। પણ અહીંયા પણ જુઓ, આ વાય કેન્સલ, એક્સ કેન્સલ, એટલે રહેશે શું, 1, ઓકે। તો જુઓ આપણે સૌપ્રથમ આપણે શું કરીએ, લોગ હટાવી દઈએ। તો જે બાકીની જે ટર્મ છે હું અહીંયા લખું છું, જો એક્સ બાય વાય ઇન્ટુ વાય બાય એક્સ ઇક્વલ ટુ જમણી બાજુ શું રહેશે, એક્સ પ્લસ વાય, ઓકે। ચાલો તો હવે જો આ એક્સ વાય કેન્સલ, તો આ બધું જ કેન્સલ થઈ ગયું। તો શું રહેશે આપણા પર, 1 રહેશે ડાબી બાજુ, જમણી બાજુ શું છે, એક્સ પ્લસ વાય। તો જો આપણો જવાબ આવી ગયો। આ છે કશે ઓપ્શનમાં, તો છે, જો ઓપ્શન નંબર એ છે ને। શું લખ્યું છે, એક્સ પ્લસ વાય બરાબર 1 લખ્યું છે આપણું, શું 1 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सो सेम ही है, गेटिंग। तो इस तरीके से इनको भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है। चलिए तो मूव होते हैं अब थर्ड पे। अब देखो ये तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी ही हमारे पास आ गई है। हमने ये पढ़ा था कि लॉग ए टू द बेस ए डायरेक्ट प्रॉपर्टी है ना। इसका क्या आंसर आता है, जिसका लॉग ले रहे हैं मतलब इनका, किसके बेस पे है ना, ये देखो इसका बेस क्या है, आधार શું છે એનો, તો એ બંને કેવા છે, સરખા, બરાબર। આ જો બંને સરખા હોય તો એનો જવાબ આપણાથી કેટલો લખાય છે, આપણાથી 1। तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका ऑप्शन क्या आएगा आपका, बी मीन्स ब, ओके। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत इजी है, 2019 का विंटर का देखिए उसके कंपेयर में ये इजी है, ओके। चलो तो ये तीनों क्वेश्चन हमने देख लिए हैं अभी। तो अभी हम क्या करते हैं, दूसरा एक क्वेश्चन पेपर लेते हैं। ये विंटर 2018 का है, तो अब हम लेते हैं समर 2018 का क्वेश्चन पेपर। उसमें भी 3 MCQ पूछे गए थे। तो उसमें से ये पहला जो MCQ है ये है, क्या दिया है, द लॉगरिदमिक फॉर्म ऑफ, इसका 3⁴ इक्वल टू 81 इज, मतलब ये जो दिया है ना 3⁴ इक्वल टू 81, वो जो है ये किसके फॉर्म में दिया हुआ है हमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब घातांकीय स्वरूप में अपन आप्યું છે। એને આપણે સામા લખવાનું છે, લઘુગણકીય સ્વરૂપમાં, એટલે કે લોગરિધમિક ફોર્મની અંદર। તો છે ને 3⁴ બરાબર 81નું લઘુગણકીય સ્વરૂપ કેટલું, तो इजी है। ये एक्सपोनेंशियल मीन्स घातांकीय फॉर्म है, उसको हमें लॉगरिदम में कन्वर्ट करना है, लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे, बहुत ही ईजी है ये भी। हम क्या करते हैं, ये जो 3 है ये किसका बेस है, 4 का, है ना। 3 જે છે એ આ 4નો શું થઈ ગયો કહેવાય, આપણે આધાર થયો કહેવાય। તો આ 3 જે છે ને એ હવે કોનો આધાર બની જશે, લોગ લેશું તો 81નો, બરાબર છે। એટલે 81 લખું છું મેં, ને એનો આધાર કેટલો લખું છું નીચે 3, એને આપણે શું લેવાનો છે, લોગ, પછી બરાબર શું લખાશે, અહીંયા જે ઘાત રહી જાય છે એ, એટલે કેટલા આવશે 4, ઓકે। तो ऑप्शन પણ છે આપણે પર, जो चेक करो छे log 81 टू द बेस 3। तो 81 log का देखो यहाँ पे है और यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे बेस 4 दिया है तो ये नहीं आएगा, बेस 3 है तो वो राइट है तो वो आएगा, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा आपका, बी, मतलब ब।
ખબર પડી બધાને? ખૂબ જ ઇઝી છે. શું કરીએ છે, અહીં જે આધાર હોય છે એ કોનો બની જશે? 81નો. એટલે કે જો 81ના નીચે આધારમાં મેં શું લખ્યા છે? 3. અને આપણે લઘુગણક સ્વરૂપમાં આપણે રૂપાંતર કરીએ છીએ તો શું આવી જશે આગળ? log. હવે 3 જે છે એ અહીંથી આપણે નીકળી ગયા તો બાકી શું રહી ગયું? 4. तो बराबर करना આપણે શું લખવાનું રહેશે? 4. ओके, तो यहाँ पे जो आंसर है वो आपका आएगा बी. बहुत इजी है ये भी. क्या किया यहाँ पे वो हमने ऑलरेडी, आप देखो तो इंट्रोडक्शन के जो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट है उसमें मैंने क्विकली समझाया ही है कि कौन कौन सी चीज़ जो है ये यूनिट में इम्पोर्टेंस है ना. तो अभी मूव होते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे. देखो ये 2 है. अब इनको हम दो तरीके से कर सकते हैं. पहले तो हम एक सिंपल तरीका जो है वो यूज़ करते हैं. क्या दिया हुआ है? सी log ऑफ 27, उसका बेस क्या है? 3 प्लस log ऑफ 9 और उसका बेस क्या है? 3. बराबर. तो आने लखाशे केवी रीते? साइड पर लखो छो. हवे अहीं आधार केटलो छे? बंनेमां 3 छे. तो शुं थशे? आ 2 लॉगनी जग्याए आपणे 1 लॉग लखीशुं અને 27 × 9 કરીશું તો પણ આપણો આન્સર આવશે. બરાબર છે. પરંતુ એક સાદી મેથડ બતાવું છું કે આધાર કેવો છે? 3 છે. તો હવે 27 જે છે એને 3ના આધારમાં આપણાથી લખાશે? તો લખાશે. કેવી રીતે? आ log आधार 3 मैंने वो लिखा. अब देखो यहाँ पे भी log और यहाँ पे बेस 3 लिखा मैंने. अब मैं थोड़ा कलर चेंज करके बताता हूँ. ये जो 27 है उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 3³ टोन घन लखाए से. कारण के 3 × 3 9 × 3 कितना हो जाएगा? 27. तो 3 बार આપણે 3ને ગુણીએ છીએ ને એટલે 3ની 3 ઘાત લખાય. 27 જ કહેવાય ને, ફક્ત આપણે અલગ રીતે લખ્યા છે. બરાબર. એ જ રીતે અહીં શું છે? 9 છે. તો 9ને આપણાથી શું લખાશે? 3 × 3 मतलब 3 × 3 શું થશે? 9 થશે. બરાબર. તો આપણે 2 વાર આવ્યા તો શું લખીએ? 3ની 2 ઘાત લખીએ, 3². तो यहाँ पे 9 की जगह पर मैं क्या लिखूँगा? 3² लिखूँगा. यानी चलिए अब क्या होगा? ये जो 3 है और ये जो 2 है वो क्या हो गई? हमारा पावर हो गया. मतलब આપણે શું થઈ ગઈ? ઘાત થઈ ગઈ. અને આપણે ઘાતાંકનો નિયમ તો જોયો જ છે. પાવર હોય તો શું કરીએ? એને આપણે લોગની આગળ લખી દેવાનું બંને જગ્યાએ. બરાબર છે. તો જુઓ આ 3ને અહીંથી હટાવીશું આપણે અને શું લખાશે આપણાથી? 3 આગળ આવી જશે. log ये 3 तो है ही और यहाँ पे ये जो बेस है वो भी है, प्लस ये जो 2 पावर है उसको हम आगे लेते हैं तो क्या हो जाएगा? log 3 तो बेस 3 हो गया. अब देखिए हमारा ये रूल हमने पढ़ा है कि log हो जिसका log ले रहे हैं वो और उसका बेस दोनों सेम है तो आंसर क्या आता है? 1 आता है. तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है? देखिए यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है तो दोनों सेम है. यहाँ पे ये तो ये पूरा जो मैंने सर्कल बनाया उसका आंसर क्या आएगा? 1. सिमिलरली यहाँ पे भी ये दोनों सेम है तो पूरा जो मैं सर्कल बनाता हूँ उसका आंसर आएगा 1. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं. तो सी ये 3 तो है ही तो ये मैं 3 लिखूँ और ये पूरा सर्कल का आंसर क्या आता है? 1. तो ये मैंने 1 लिख दिया. प्लस ये 2 तो है और उसके साथ मल्टीप्लाई क्या है? ये. तो ये पूरा सर्कल का आंसर क्या आता है? 1. तो देखिए हो गया हमारा. ये 3 × 1 क्या आएगा? 3 प्लस 2 को 2. 3 + 2 कितना आएगा? 5. तो ये हमारा आंसर कितना आ गया? 5 आ गया. तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है? देखिए डी है, मतलब ड. ओके, आ આપણો સાચો જવાબ. ખબર પડી બધાને? ખૂબ જ ઇઝી છે. ઓકે, હવે મારે આને જ આપણે બીજી રીતે આપણે કરવું હોય તો આપણે કરી શકીએ છીએ. ખૂબ જ ઇઝી પણ છે, એવું જરૂરી નથી. બરાબર. પરંતુ આ જે છે એ મેં તમને એકદમ ઇઝી મેથડ બતાવી. હવે આમાં જ મારે કરવું હોય તો કેવી રીતે કરી શકાય? જોજો ધ્યાનથી.
શું કરું મેં, આ બંનેમાં 3 આધાર સરખો છે અને 2 લોગવાળા પદો છે અને વચ્ચે શું છે, સરવાળો. તો મેં શું કરી શકું, 2ની જગ્યાએ 1 લોગ લખાશે મારાથી અને આધાર કેટલો આવશે 3 અને આ 27 અને 9નો શું થશે, ગુણાકાર. તો અહીંયા હું બ્રેકેટમાં લખું છું 27 ગુણ્યા 9. બરાબર છે. હવે આનો આપણે ગુણાકાર કરીએ એના કરતાં આપણે ડાયરેક્ટ લખાશે ને, 27 એટલે કેટલા કહેવાય છે આપણા, 3 × 3 × 3 इंटू ये 9 मतलब क्या होता है, 3 × 3, राइट. तो ये कितनी बार आया, 5 टाइम आया. तो हम क्या लिख सकते हैं, 3/5. तो अन्य 5 घात लखाई 27 गुण્યા 9ની જગ્યાએ. બરાબર છે. તો હું ડાયરેક્ટ લખી દઉં છું log 3ની કેટલી ઘાત લખાશે, 5. બરાબર. આ 27 ગુણ્યા 9ની જગ્યાએ અને આધાર તો 3 છે જ. હવે આપણે નિયમ શીખી ગયા એ हिसाबे जो आप 5 शो थे गई तुम्हारी घात मीन्स पावर, तो वो लॉग के आगे चला जाएगा. तो मैं लॉग के आगे 5 लिखता हूँ, तो ये बाकी का यहाँ पे सेम रहे. अब देखिए ये दोनों सेम है, तो ये पूरी टर्म का आंसर क्या हो जाएगा, 1. तो ये आगे क्या है, 5 है और ये मैंने सर्कल किया, उसका आंसर 1. तो आंसर क्या आ गया, यहाँ पे भी 5. तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो. ओके. अब उसके बाद आपको चेन्ज ऑफ बेस એટલે કે આધાર પરિવર્તનનો નિયમ યુઝ કરવો હોય ને એ પણ થાય છે, પરંતુ આ એક સિમ્પલેસ્ટ વન છે મેથડ. બરાબર. તો તમે આ જ ફોલો કરો તો વધારે સારું રહેશે. ચાલો હવે આપણે મૂવ થઈએ છીએ ક્વેશ્ચન નંબર 3. આ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે આ ક્વેશ્ચન પેપરનો. થોડો કોમ્પ્લિકેટેડ દેખાય છે પણ એટલો બધો છે નહીં. જો તમને 2 વાર લॉग દેખાશે છે ને, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, log, और यहाँ पे बेस क्या है 3. किसका करना है, तो देखो मैं कलर अलग यूज़ करता हूँ. ब्रैकेट में फिर से log आया, 2 का log और बेस 8. अब सी ये जो ब्रैकेट के अंदर log आया ना, उसको पहले हमें सॉल्व करना है. उसका जो भी आंसर आएगा उसका log यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे. समझ में आ रहा है आपको. सो लॉग ये जो मैंने बताया है सर्कल में, उनका लॉग करना है, मतलब लॉग करना है किस टर्म का, तो ये पैरोट कलर वाली टर्म का. तो उसके अंदर भी फिर से लॉग है, तो उनको पहले हम सॉल्व करेंगे. मतलब ये जो मैंने पैरोट कलर में जो बताया है उनको हम पहले सॉल्व करेंगे, बाद में ये बाहर का लॉग हम सॉल्व करेंगे, राइट. सो पहले अंदर से स्टार्ट करना है, ब्रैकेट के अंदर से 2 बार लॉग है इसीलिए. तो ये वाला जो टर्म है ना, उनको तो हम एज इट इज़ रखेंगे. देखो मैं कलर भी वही यूज़ करता हूँ, एज इट इज़ रखना है लॉग और उसका बेस क्या है 3. समझ में आया. अब ये ब्रैकेट में करता हूँ इनका. अब ब्रैकेट के अंदर मैं कलर डिफरेंट यूज़ करता हूँ. अब इनका क्या करेंगे, देखो ये 2 है, 4 होता तो हम 4 स्क्वायर कर सकते हैं, सॉरी 4 होता तो हम 4 की जगह पे 2 स्क्वायर कर दे, 8 होता तो 2 क्यूब कर दे, कुछ ना कुछ हम करके देखते हैं. लेकिन यहाँ पे है नहीं, देखो रिवर्स दिया है, 8 नीचे आधार में है और यहाँ पे किसका लॉग ले रहे हैं हम, 2 का. तो ऐसा केसेस आते हैं ना कि जहाँ पे आप स्टक हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता है कि मुझे करना क्या है, तब आपको क्या करना है, चेन्ज ऑफ बेस. खबर पड़ी बधाने. ત્યારે આપણે શું યુઝ કરવાનું છે, આધાર પરિવર્તનનો નિયમ. તો આ જે અંદરનો જે લોગવાળું પદ છે એમાં આપણે આધાર પરિવર્તન કરીશું. તો આધાર પરિવર્તન કેવી રીતે થાય છે કે આ 2નો લોગ લેવાનો. બરાબર. log 2 ડિવાઈડ બાય એટલે કે ભાગ્યા આ જે આધાર છે એનો લોગ લેવાનો, એટલે શું થશે, log 8. સમજ પડી બધાને. ખૂબ જ ઇઝી છે. ઓકે. ચાલો હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપ આપણે શું કરીશું, બધું સેમ જ છે. હવે આ જે 8 જે છે અને 2માં તો આપણાથી કશું થવાનું નથી. આ 8 જે છે એને આપણે કેવી રીતે લખીશું, એક જ મિનિટ. હા, હું થોડું સાઇઝ મોટી લખું છું જેથી એક જ ટર્મની અંદર આપણે ચેન્જીસ કરીને હું તમને બતાવી શકું. આ જે બ્રેકેટ છે એનો લોગ લેવાનો છે. બરાબર. આધાર કેટલો છે, 3. હવે આપણે આધાર પરિવર્તન નિયમ યુઝ કર્યો તો શું આવ્યું, log 2 ડિવાઈડ બાય log 8. હવે જોજો આધાર પરિવર્તનનો નિયમ કરી દીધો પછી આપણે 8ની જગ્યાએ આપણાથી શું લખાશે, અહીંયા 2 છે ને,
तो अहीं पण आपणे 2 ना आधारमां लखवानी ट्राय करिए 8 ने। सो 8 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 क्यूब लिख सकता हूँ, बराबर ने। 8 एटले शुं थाय, 2 गुणिया 2 4 गुणा 8, 3 वार 2 आव्या गुणाया एटले आपणे शुं लखीए 2 ની 3 घात 2 क्यूब। सो यहाँ पे 8 था, उसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया, 2 क्यूब लिख दिया, राइट। एक ही मैं टर्म में चेंज करके बताता हूँ, बराबर। एक ज पद में हूँ चेंज करने बताऊँ छूँ, तमारे अलगथी करवानुं होय छे, है ने। चलो हवे 2 ની 3 घात थई गई, तो आ 3 शुं थई गई, आपणी घात थई गई। दैट मीन्स 3 जो है वो क्या है, हमारा पावर हो गया। तो पावर हो गया तो पावर लॉग के आगे चला जाएगा, ये हमारे पास रूल है। तो ये 3 को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ और उसको मैं आगे लिख देता हूँ लॉग के आगे। समझ में आया सबको। अब देखो क्या होगा, ये log 2 और ये log 2 कैंसल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में log 2 है टर्म, बराबर है। अंश और छेद में बने में log 2 है, तो बने कैंसल थी जैसे। तो रहेशे शू, तो अहीं हूँ लखूँ छूँ log आगळनो भाग लखूँ छूँ, बराबर। आधार केटलो 3। हवे काउंस में शू रहेशे, आ अंश में तो log 2 कैंसल थी गयुं, एटले शुं रहेशे 1, अने छेद में log 2 कैंसल पण अहीं 3 है, तो अहीं शुं आवी जशे 3। जो खूब ज नानी टर्म आपणी आवी गई। हवे अहीं आपणे 2 रीते करी शकीए पाछा। आने मारे लखवुं होय तो शुं लखाय, log आधा 3 अने 1/3 जे छे ने 1/3, तो આપણે 3 લખીએ તો અહીંયા આગળ શું કરી દેવાનું, માઇનસ, બરાબર। આપણે આ નિયમ જોયો હતો, એ નિયમ પણ હું તમને બતાવું છું। सी log इसका 1/x में लिखता हूँ और यहाँ पे बेस क्या है, a है। अब ये 1/x है, मतलब x जे छे शामां छे, तमारो छेदमां छे, एने जो मारे अंशमां लई जवो होय एटले के आधा तो ए रहेशे। आ 1/x छे, x छेदमां, दैट मीन्स x जो है वो डिनोमिनेटर में है, उसको मुझे न्यूमरेटर में लेके जाना है, मतलब एने अंशमां लई जवुं छे। तो हूँ लई लऊँ 1/x ने x लखाशे, पण आगळ आपणे शुं करवुं पड़शे, माइनस, बराबर है। तो ए ज रीते अहींया 1/3 है, तो 3 जे छे छेदमां छे एने अंशमां लई गयो, बराबर छे। एनुं ऊंधुं कर्युं एटले आपणाथी शुं लखाशे, 3/1 लखाशे। हवे छेदमां 1 होय, 1 थी भागीए तो कोई फरक ना पड़तो, एटले 3/1 ની जग्याએ આપણે શું લખી દેવાનું, ફક્ત 3 લખાય, બરાબર છે। એટલે આને આપણે રિવર્સ કરીએ, ઊંધું કરીએ, રેસિપ્રોકલ, રાइट। તો આપણે આગળ શું કરવું પડે છે, માઇનસ। હવે અહીંયાથી આ પાછું આપણું ઇઝી થઈ ગયું ક્વેશ્ચન, बराबर। અહીંથી આપણે 2 રીતે કરી શકીએ છીએ, है ना। मैं एक बताऊँ છું તમને, तो जुओ ये 3 और ये 3 दोनों सेम हो गए, तो ये पूरी टर्म का आंसर क्या आएगा, 1, बहुत बार आया। और आगे क्या है, माइनस है, तो देखो आगे माइनस है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट। आगे माइनस है और ये पूरी टर्म का आंसर क्या आएगा, 1, यानी कि ये हुआ। तो आंसर क्या आया हमारा, -1। तो ये ऑप्शन कौन सा आया हमारा, बी, मीन्स ब, बराबर है। खूब ज इजी है ने। चलो जो तमने हवे आ रूल्स ना खबर पड़ती होय, 1/3 ने आपणे 3 लखी देवाना अने आगळ माइनस करवानुं। जो कोईक वार तमाराथी भूलाई जवाय तो शुं करवानुं, तो जुओ log बेस 3, बराबर, ये तो मैंने लिखा ही है। अब ये 1/3 है ऐसा, तो 3 के पावर में कुछ नहीं है, मतलब 3 ની घात कई नहीं, એટલે 1 तो कहेवाय ज। हवे हूँ आ 3 छेदमां छे तेना अंशमां लई जाऊँ तो शुं लखाय, 3 ની -1 घात लखाय। आ घात प्लस छे ए शुं थई जशे तमारी माइनस, तो 3 ની -1 घात लखाय आपणाथी 1/3 ની जग्याए 1/3 ની जग्याए लखाशे। तो ए हूँ लखी देऊँ छुं 3 ની -1 घात। हवे आपणो नियम शुं कहे छे कि आ जे घात आवे छे लॉगनी आगळ आवी जाय, तो -1 जे छे हूँ उपर लखुं छुं ए लॉगनी आगळ आवी गया, तो बाकी शुं रहेशे, लॉग आ 3 અને આ બેઝ 3 રહેશે। હવે પાછો આપણો ક્વેશ્ચન સેમ થઈ ગયો। આ કેટલા છે તમારા આગળ, -1, અને આ બંને 3 3 સેમ છે, તો આ આખા ટર્મનો આન્સર કેટલો આવશે, 1, એટલે -1 × -1 શું થઈ જશે આન્સર તમારો, -1। તો પણ આપણો આન્સર આવી ગયો, બરાબર। તો તમે કોઈ પણ રીતે એને કરી શકો છો, પરંતુ જે આપણા પર લો અને પ્રોપર્ટી અને જે નિયમો છે, બસ આપણે એનો જ યુઝ કરવાનો છે। આપણે જાતે કોઈ નવા નિયમો બનાવવાના नहीं, बराबर है। आई होप कि आपको ये जो सारे के सारे MCQ है वो आपको समझ में आ रहे हैं। आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, राइट। तो मैं और कोई तरीके से आपको समझाने की ट्राई करूँगा।
लेकिन ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आप रेगुलर स्टूडेंट हो, फर्स्ट सेम के अंदर हो, तो आपको 3 MCQ जो है वो ये यूनिट में से आते हैं। और आप C2D वाले हो, है ना, आप रेगुलर फर्स्ट सेम के लिए हो, तो अब C2D के एडमिशन लिए है आपने और C2D में लिया है एडमिशन, तो आपको फर्स्ट सेम में 70 मार्क का MCQ की एग्ज़ाम आएगी। भले आप थर्ड सेम में पढ़ रहे हो, तो उसमें ये जो यूनिट नंबर 1 है उसमें से 10 MCQ आते हैं और ऐसे ही इजी MCQ आते हैं, राइट। तो आप आराम से पास हो सकते हैं। गेटिंग? तो आज हम यहाँ पे एंड करते हैं वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में हम अभी 18 का हमने आज किया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम विंटर 17 एंड समर 17 मतलब 2 क्वेश्चन पेपर के जो है MCQ वो हम सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, राइट।